ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 24 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 25 ملاحظہ فرمائیں۔ میں بھی حویلی سے آدھے فاصلے پر پہنچا ہوں گا کہ اچانک مجھے 4 نقاب پوشوں نے گھیر لیا۔ وہ بھاری بھرکم تھے اور پستولوں سے مسلح۔ اپنی جیب خالی کر دے جوان، ورنہ میرے پستول کی گولی کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو میری بات غور سے سنو۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ رقم میرے پاس کسی کی امانت ہے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اپنی جوانی پر ترس کھا جوان، ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ہاتھوں سے خرچ ہو جائے۔ زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تبنگ لہجے میں کہا۔ تمہاری طرح کے پستول کے بل پر اکڑنے والے 2 ٹکے کے لفنگے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو ذرا پستول ایک طرف رکھ کر سامنے آئے، پھر تمہاری بہادری کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ بکواس نہ کرو اے مچھندر، ان میں سے ایک نے گرجتے ہوئے کہا۔ میں اکیلا ہی تیرا کیما کر دوں گا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، آؤ۔ تیرے باقی ساتھی کیا واقعی نامرد ہیں؟ ان چاروں کے حلق سے غضبناک راہٹیں خارج ہوئیں اور وہ اپنے پستول اپنی بیلٹوں میں اڑس کر بیک وقت مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں اپنی حکمت عملی میں پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ میں نے ان کے پستول ہی نہیں رکھوائے بلکہ انہیں بری طرح مشتعل بھی کر دیا۔ ان چاروں نے غلیظ گالیاں بکتے ہوئے مجھے اپنے گھونسوں پر رکھنا چاہا۔ میں چند قدم تک پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ مجھے پیچھے ہٹتے دیکھ کر وہ چاروں ایک ساتھ مجھ پر جھپٹے۔ اسی وقت میں گولی کی طرح ان کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ اس دوران میں میری دائیں ہاتھ کی کونی ان میں سے ایک کی کدی پر اور بائیں ہاتھ کی کونی دوسرے کی پسلیوں پر پڑی۔ میں نے پلٹ کر نتائج کا جائزہ لیا۔ جس نقاب پوش کی گردن کی مضبوطی کا میں نے امتحان لیا تھا، وہ اس امتحان میں ناکام ہو کر منہ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ دوسرا مضروب اپنی پسلیاں دبائے اکڑوں بیٹھا نظر آیا۔ اپنے 2 ساتھیوں کا یہ حشر دیکھ کر باقی دونوں کے نتنوں سے پھنکاریں نکلنے لگیں۔ وہ دونوں بیک وقت مجھ پر جھپٹے۔ وہ لوگ شاید پستول کے بل پر ہی رستمی دکھانے کے ماہر تھے، چنانچہ مجھے یقین تھا کہ میں انہیں خاک چٹا دوں گا۔ جو ہی وہ دونوں میرے قریب آئے، میں نے جھکائی دے کر ان کے وار خالی کر دیے۔ وہ ابھی جھونک سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ میں نے ان میں سے ایک کی کمر پر لات جما دی، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر لڑکڑیاں کھاتا چلا گیا۔ دوسرے کو میں نے گھونسوں پر رکھ لیا۔ اس نے جوابی گھونسے چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ایک نہیں چلی۔ چند ہی مکوں میں اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں اس پر فیصلہ کن وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی میرے مد مقابل کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ اپنی دائیں ران کو دبا کر جھک گیا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے فوراً ہی اس کی بیلٹ میں اڑسا ہوا پستول نکال لیا۔ پستول چلانے والا وہ نقاب پوش تھا جس کی پسلیاں میری کونی کا نشانہ بنی تھیں۔ اس کی نااہلی کی حد یہ تھی کہ اس نے اپنے ہی ساتھی کی ران کو چھید کر رکھ دیا تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنے ساتھی کو زخمی ہوتے دیکھ کر وہ بھونچکا سا رہ گیا۔ جب تک وہ سنبھلتا میں نے اس کے زخمی ساتھی کو قابو کر کے اپنے سامنے کر لیا۔ پستول پھینک دے اور چڑی مار کے اولاد، میں نے گرجدار آواز میں کہا۔ یہ ہتھیار چلانا تیرے جیسے بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ وہ شخص مزید غصے کا شکار ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیتا، لیکن اس کے اور میرے بیچ اس کا اپنا ساتھی حائل تھا، جو اس کی گولی کا نشانہ بن کر تیزی سے زندگی کی سرحدوں سے دور ہٹتا جا رہا تھا۔ پستول پھینک دے، اسی میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی بہتری اور بھلائی ہے۔ تیری چاند ماری تو میں دیکھ ہی چکا ہوں۔ وہ شخص کچھ دیر کشمکش میں مبتلا رہا، پھر اس نے مرے مرے ہاتھوں سے اپنا پستول زمین پر پھینک دیا۔ شاباش، اب ان دونوں پردہ داروں کے پستول بھی لے کر اتر ڈال دے۔ جلدی کر بچے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ باقی 2 میں سے ایک تو پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ دوسرے کی ناک سے بھل بھل خون بہ رہا تھا۔ میری ٹھوکر نے اسے منہ کے بل ڈھیر کر دیا تھا کہ آج اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میں زخم خوردہ نقاب پوش کو اس کے ساتھیوں کی جانب دھکیل دیا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ بری طرح چیخ پڑا۔ اس کے بعد واحد صحیح سلامت ساتھی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ کتے کی نسل، موچی کی اولاد، تیرے کو کس نے کہا تھا کہ تو اپنا خاندانی پیشہ چھوڑ کر 30 مار خانی کر؟ تو نے ہم سب کو مروا دیا۔ میں نے تو… اس بیچارے نے ہکلا کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ بس اب بکواس نہ کر اور اپنے اس معاملے سے نمٹ۔ بڑا شوق تھا تجھے پستول چلانے کا نا؟ مجھے تم لوگوں سے کچھ نہیں لینا دینا، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ تم جیسے 2 ٹکے کے اچکوں کا ایک نہ ایک دن یہی انجام ہوتا ہے۔ چاہو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مرہم پٹی تو خیر تم کر ہی لوگے، لیکن آئندہ کوئی واردات کرتے ہوئے آسامی ذرا دیکھ بھال کر تارنا۔ بہتر یہی ہے کہ اکیلے وکیلے بچوں کا جیب خرچ چھین کر اپنا شوق پورا کر لو۔
राजधानी जैसा खतरनाक खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे पिस्तौल तो हमें वापस कर दो भाई। नकाबपोश मोची ने बिल्ला आखिर मोचियों वाली बात कर ही डाली। तुम्हारे नाजुक हाथ इन खतरनाक खिलौनों का बोझ उठाने के काबिल नहीं है बच्चे। चुपचाप यहां से खिसकने की करो, ऐसा ना हो मैं अपना इरादा बदल लूं। ठीक है जवान, गोली से जख्मी शख्स ने कहा। आज का ये मार्का तू जीत गया है। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जरूर मिलना भाई साहब, लेकिन आइंदा अपने साथ खिसियारों और मोचियों को लेकर ना आना। मोची साहब ने मुझसे कुछ मुकालमेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही ने उसे बुरी तरह डांट दिया। बस सब औरतों की तरह कोसे देना बंद करो और अपने इस माँ के यार को होश में लाने की कोशिश कर। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा और कमालुद्दीन खान की हवेली की जानिब रवाना हो गया। इन चारों के पिस्तौल मेरे पास थे। मुझे यकीन था कि फिलहाल वो किसी किस्म की शरारत की कोशिश नहीं करेंगे। बात की बात में देखी जाती इस तमाम मार्के में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। चुनांचे जब मैं हवेली के गेट पर पहुंचा तो रात का इब्तदाई पहर शुरू हो चुका था। गेट पर किसी ने मुझसे बाज पुरुष नहीं की और मैं सीधा हवेली में घुसता चला गया। सामने ही मुलाकात का हाल था। इस वक्त मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। मैं चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। एक दो मुलाजिम इधर से गुजरे भी, लेकिन किसी ने मुझ पर तवज्जो नहीं थी। कुछ देर बैठे रहने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा इरादा था कि मैं किसी से कमालुद्दीन खान के बारे में पूछूं। अचानक मैं कमालुद्दीन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। यह आवाज़ कोने वाले कमरे में से आ रही थी। मैं इस कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि मैंने अपना नाम सुना। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। अब मैं कमालुद्दीन की आवाज़ साफ तौर पर सुन रहा था। कमालुद्दीन कह रहा था, बहुत देर हो गई, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। मुझे खतरा है कि इन चारों ने उसे ज्यादा ही ना मार लगा दी को। नहीं खान जी, वो बेचारा रोता पीटता अब आता ही होगा। मेरे दोस्त मोहम्मद को कहा था कि उसके साथ बस इतनी ही जोर आजमाई करें कि उसके कस बल का अंदाजा हो जाए। वैसे खान जी, आपका ख्याल बिल्कुल सही है। यह लड़का गुलाम सईद है, बहुत अच्छे हाथ पैर का। अगर यह पूरी तरह आपके साय में आ जाए तो जरा सी तरबियत के बाद बहुत अच्छा लड़ाका बन सकता है। अरे इसीलिए तो इन चारों को इसके पीछे भेजा है। अगर इसके हाथ से वो रकम छिन गई तो वो पूरी तरह हमारे हुक्म का गुलाम बन जाएगा। मैं इसे साफ साफ कह दूंगा कि या तो चुपचाप मेरे कहने पर चलता रहे, वरना मैं तुझे रकम के गबन के सिलसिले में जेल भिजवा दूंगा। कमालुद्दीन खान की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रहा था। इस शैतान फितरत शख्स ने मुझे काबू में करने की बेहद मकरू स्कीम बनाई थी। अगर मैं इसके बुने हुए जाल में फंस जाता तो मुझे फड़फड़ाने की भी मोहलत नहीं मिलती। इस स्कीम की कामयाबी के बारे में इन्हें कोई शक नहीं था। चार मुसल्ला हमला आवरों के मुकाबले में भला एक नहत्ता शख्स क्या कर सकता था। इनकी सोच गलत नहीं थी, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि इनका वास्ता सैफ ताद खान से पड़ गया था। इसके वो कारिंदे यकीनन इसके बाएतमाद मोरे होंगे, लेकिन इनके सीने में वो आग नहीं भड़क रही थी जिस आग में मेरा वजूद सुलग सुलग कर फौलाद बन गया था। जब मैं अपने किसी दुश्मन पर वार करता तो मेरे जिस्म में साला साल से जमा शुदा नफरत और इंतकाम की चिंगारियां मेरे वजूद को तूफानी कुव्वत अता कर देती थी। इस तूफान के सामने बड़ी सी बड़ी चट्टान रेत की दीवार के मानिंद भुरभुरा कर खत्म हो जाती। मैंने जितना सुन लिया था वो मेरी आंखें खोल देने के लिए बहुत काफी था। मैं अब इस बदनीय शख्स की मुलाजमत में एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकता था। मैं इसकी एक साजिश से तो किसी न किसी तरह बच गया था, लेकिन कौन जाने इसकी अगली चाल मुझे कौन से अंधे कुएं में धकेल थी। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं चंद लम्हे वहां खड़ा इनकी बातें सुनता रहा। फिर मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ बिलाखिर बिला इजाजत इस कमरे में घुसता चला गया। कमालुद्दीन खान मुझे देखकर हैरत से बुरी तरह चौंक पड़ा। इसके साथ उसका मुंशी भी था। उसकी हालत भी अपने मालिक से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। वो दोनों हैरानी से मुंह खोले मेरी शक्ल देख रहे थे। तुम? मुंशी के हल्क से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हाँ, ये मैं ही हूं, मेरा भूत नहीं है, मैंने तंजिया लहजा में कहा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन दोनों की आंखें नोच लूं। अगले लम्हे कमालुद्दीन खान ने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। कार्य तो है गुलाम सईद, तुमने आने में बहुत देर कर दी। हाँ, देर तो हो गई है खान साहब। आखिर इन चारों के दिल की हसरतें भी तो निकालनी थी जिन्हें तुमने मेरे इस्तकबाल के लिए भेजा था, मैंने जहरीले लहजे में कहा। कौन चारों? कैसा इस्तकबाल? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, कमालुद्दीन खान ने अनजान बनते हुए कहा। यह तुम्हें अभी समझ आएगा कमालुद्दीन खान। जब तुम्हारे कारिंदों की चार पाइयां तुम्हारे सामने पहुंचेंगी तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। मैंने देखा कि कमालुद्दीन का पिलपिला चेहरा सफेद पड़ता चला गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम इन चारों को, क्या तुम सच कह रहे हो? उसके हल्क से मुश्किल आवाज निकल रही थी। मुझे झूठ और मक्कारी से नफरत है। मेरी सच्चाई का सबूत चाहते हो तो ये लो। मैंने अपनी जेबों में ठुसे हुए चारों पिस्तौल उसके सामने मौजूद मेज पर डाल दिए। ये चारों पिस्तौल मैंने तुम्हारे इन चारों सुरमाओं से छीने हैं। अपने कारिंदों को हथियार देते वक्त
ज़रा ये भी तसल्ली कर लिया करो कि वो इनकी हिफाजत भी कर सकते हैं या नहीं। तुमने इन चारों को मार डाला? मुंशी ने फटी फटी आवाज़ में पूछा। इसकी हालत अपने मालिक से भी ज़्यादा गैर थी। नहीं, मैं खामखा किसी खून से अपने हाथ रंगना पसंद नहीं करता। वो चारों जिंदा हैं, अलबत्ता उनकी जो भी हालत है इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। कमालुद्दीन की हैरत में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था। जो कुछ वो सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था, लेकिन इस पर यकीन किए बिना चारा भी नहीं था। अपने गुस्से को जरा ठंडा रख जवान। कमालुद्दीन बिल्लाखिर खुद पर काबू पाने में कामयाब हो गया। जरा इत्मीनान से हमें बता कि हुआ क्या है। होना क्या है खान जी? मैंने अपनी आवाज़ को धीमा मगर मजबूत रखते हुए कहा। तुम्हारे भेजे हुए कारिंदों ने मुझसे ज़बरदस्ती रकम छीनने की कोशिश की। जब मैंने मुजाहमत की तो वह हाथ पाई पर उतर आए। इनमें से 2 को मैंने ज़मीन पर लिटा दिया, तीसरा अपने ही साथी की गोली से जख्मी हो गया, चौथे को इनकी देखभाल करता छोड़ कर आया हूँ। अय मुंशी, और तू जल्दी से जाकर 4-6 आदमियों को अंधी खुई की तरफ भेज। ऐसा न हो कि इनमें से एक आध खत्म हो जाए। कमालुद्दीन का हुक्म सुनते मुंशी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम यहाँ आकर बैठो गुलाम सईद, तुमसे कुछ बातें करनी है। कमालुद्दीन खान ने बेहद पुरसकून लहजे में कहा। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है कमालुद्दीन। तुम अपनी ये रकम संभालो और मुझे इजाज़त दो। मैं अब 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ गुलाम सईद। गुस्सा थूक दो। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था। दरअसल तुम मुझे पसंद आ गए थे और मैं हर कीमत पर तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता था। लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? मैंने हैरानी से पूछा। तुम अभी इस बात को नहीं समझ सकोगे जवान। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना समझ लो कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। तमाम उम्र बर्बाद करके बस ये आंखें ही तो पक्की की हैं। मैंने तुम्हें एक नज़र देखा और मुझे अंदाजा हो गया कि तुम दरअसल एक ना तराशीदा हीरा हो। अभी तुमने जो मेरे कारिंदों का हशर किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि मेरी नज़र ने धोखा नहीं खाया है। मैं अपने कारिंदों की तरफ तेज नज़र से घूरने वाले की आंखें निकाल लिया करता हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और मेरे कारिंदों पर हाथ उठाता तो मैं इसकी बोटियां चील कव्वों को खिला देता। लेकिन नहीं, तुम्हारा मामला दूसरा है। लाख सीपियों में से किसी एक में सुच्चा मोती निकलता है। तुम भी एक नादुर नायाब मोती हो। ऐसे नायाब मोती को अपने हाथ से जाने देना मेरी फितरत के खिलाफ है। मेरे कारिंदों में से एक भी तुम्हारी तरह डर, बेबाक और ज़हीन नहीं है। मैं तुम्हें खुलूसे दिल से पेशकश करता हूं कि मेरे मुहावसों में शामिल हो जाओ। कमालुद्दीन के लहजे में बला की संजीदगी थी। मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे बारे में किस हद तक दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन यह बात साफ है कि मैं तुम्हारे पास नौकरी नहीं कर सकता। मैंने 2 टोक लहजे में जवाब दिया। जज्बात में आकर फैसला मत करो जवान, जरा ठंडे दिल से सोचो। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। मैं तुम्हारी खातिर बड़ी सी बड़ी रकम खर्च कर सकता हूँ। तुम एक बार अपने मुंह से मांग कर तो देखो। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कूद गई। मैं वाकई जज्बात में आकर सब कुछ फरामोश कर बैठा था। मुझे याद ही नहीं रहा कि डॉक्टर ने कहा था कि हीर को टेस्ट कराने के लिए फौरी तौर पर कराची ले जाना जरूरी है। वहां से वापस आने के बाद हीर का निश्तर अस्पताल में दिमाग का ऑपरेशन होता। अगर जल्दी इसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी, और इस ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार थी, 1 लाख रुपए। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? लेकिन नहीं, मैं इस रकम का बआसानी बंदोबस्त कर सकता हूँ। कमालुद्दीन खान कह रहा है कि वो मुझे मुंह मांगी रकम देगा, 1 लाख रुपए। मुझे इसके पास मुलाजमत ही तो करनी पड़ेगी। क्या मैं अपनी हीर अपनी जिंदगी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? क्यों नहीं, मैं अपनी हीर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा कमालुद्दीन मुझे डाके डालने को ही कहेगा ना, तो क्या हुआ? अगर किसी को कत्ल करने को कहेगा तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपनी हीर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या सोच रहे हो जवान? कमालुद्दीन खान ने मुझे अपने ख्यालों से चौंका दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए खान जी, मैंने मजबूत लहजे में बिला झिझक कहा। अभी और इसी वक्त। कमालुद्दीन खान के चेहरे पर चमक सी आ गई। मुझे मंजूर है, उसने बिला तामुल जवाब दिया। और 5,000 रुपए महीना तनख्वाह, यह भी मंजूर है, कमालुद्दीन खान ने मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन मेरी भी चंद बातें सुन लो। मेरे बेशुमार दुश्मन हैं, मुझे अपने कारिंदों पर भरोसा नहीं है, लिहाजा मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार रहता हूँ। तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे। आज से तुम मेरी जिंदगी के मुहाफिज हो। मैं अपने कारिंदों को एक बात बार बार कहा करता हूँ, वो बात तुम भी सुन लो और जहन नशीन कर लो। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त रकम की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे मांग लेना। यकीन करो मैं तुम्हारी तलब से ज्यादा दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रहे, मैं नमक हरामी और गद्दारी के लफ्ज से भी नफरत करता हूँ। अगर तुम्हारी मुझसे ना निभ सके तो मुझे साफ साफ बता देना। तुम्हारी जो भी शिकायत होगी वह मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी मामला ना सुधरा तो मैं खुशी खुशी जाने की इजाजत दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे कभी यह इल्म हुआ कि तुमने किसी भी तरह मुझसे गद्दारी की है
तो फिर तुम्हारा जो हश्र होगा उसे सुन सुन कर लोग कांपेंगे। गए तो मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कमालुद्दीन खान, मैंने गंभीर लहजे में कहा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब तक मैं तुमसे इनकार करता रहा, अब जबकि मैंने हामी भर ली है तो समझ लो मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथ बेच दिया है। अब तुम मुझे जिस तरह इस्तेमाल करना चाहो मैं हाजिर हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जवान, बस सुबह से तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जगह किसी और को भेज देंगे। इसी दौरान में मुंशी भी वापस आ गया। उसे देखकर कमालुद्दीन खान की बातें खिल गई थी। मुबारक हो उल्फत खान, मैंने गुलाम सईद को मना लिया है, अब ये हमारा साथी है। बहुत बहुत मुबारक हो खान साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुंशी उल्फत खान की नजरें मुझ पर जमी हुई थी। अचानक मुझे उसकी आंखों में महज एक लम्हे के लिए शदीद तरीन नफरत और मुखासमत की चमक नजर आई। अगले लम्हे वो बेहद खुश व खुर्रम नजर आने लगा। मेरे ज़हन में मुंशी उल्फत खान की वो नज़र फांस बन कर चुकी थी। जाने मुझे क्यों यह एहसास हुआ कि जैसे मैंने कमालुद्दीन खान की मुलाजमत कबूल करके उल्फत खान को नाखुश कर दिया है। फिर मैंने इस ख्याल को अपने जहन से झटकने की कोशिश की। किसी की खुशी नाखुशी से मुझे क्या लेना देना था। मैंने गुलामी का तौक सिर्फ और सिर्फ हीर की खातिर पहना था। अगर वो तंदुरुस्त हो जाती तो मैं समझता कि गोया मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अच्छा खान जी, अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह सुबह सवेरे यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैंने उठते हुए कहा। ठीक है जवान, तुम्हारी अमानत तुम्हें कल मिल जाएगी, हो सके तो सुबह का नाश्ता यहीं करना, कमालुद्दीन खान ने कहा। मैंने इकरार में गर्दन हिलाई और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक एक शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सीधी मेरे चेहरे पर पड़ी और वो बुरी तरह टिटक गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने एक झटके से अपने कंधे पर से क्लाशनकोफ उतारी और उसे काग करके मुझ पर तान लिया। अब तू बच कर कहाँ जाएगा कुत्ते के बच्चे, उसने दांत किचकिचाते हुए कहा। मैं तेरी लाश के टोटे करके चील कव्वों को खिला दूंगा। ये क्या कर रहे हो सादिक, कमालुद्दीन खान ने मुदाखलत करना चाहिए। ये अपना ही बंदा है। ये अपना बंदा नहीं है खान जी, उसने मेरे सीने का निशाना बांधते हुए कहा। इसकी उंगली लबलबी पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही थी। ये अपना बंदा नहीं है खान साहब, मैंने इसे पहचान लिया है। ये सरदार बरकत अली का जासूस है। नीलकू धुंध में वो वसी आरीज। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी तेज रफ्तार खंडोले पर सवार हूं जो पूरी रफ्तार से गर्दिश कर रहा है। मैं हक्का बक्का सा खड़ा इस शख्स की शक्ल देखता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह शख्स कहना क्या चाहता है। सरदार बरकत अली का नाम सुनकर मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा था, लेकिन इससे भी ज्यादा धमाका खेज बात यह थी कि वो शख्स मुझे सरदार बरकत अली का जासूस करार दे रहा था। इस सरदार बरकत अली का जिसे मैंने अपने हाथों जहन्नुम रसीद किया था। जाने ये शख्स सरदार बरकत अली से कैसे वाकिफ था, लेकिन अगर वो सरदार बरकत अली से वाकिफ था तो उसने मुझे उसका जासूस किस बुनियाद पर करार दिया। ये गोरखधंधा मेरी समझ से बाला तर था। इसकी आंखों में उतरा हुआ खून साफ बता रहा था कि उसे अपनी बात का 100% यकीन है। इसका ये यकीन बिला जवाज तो नहीं हो सकता था। क्लाशनकोफ की खौफनाक नाल का रुख मेरे सीने की तरफ था, लेकिन मुझ पर खौफ की बजाय हैरत का गलबा था। ये तो क्या बकवास कर रहा है सादिक खान, कमालुद्दीन खान अपनी खरखराती आवाज में गरजा। सईद खान का सरदार बरकत अली से क्या ताल्लुक हो सकता है? इसे तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने साथ काम करने पर आमादा किया है। यह सब एक भयानक साजिश है खान साहब, इस हस्ती बस्ती हवेली को उजाड़ने की साजिश। आप इसे काबू करने का हुक्म दें तो फिर मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। तेरे को कोई गलती तो नहीं लगी सादिक खान? कमालुद्दीन ने धीमे लेकिन मुतजब्जब लहजे में पूछा। नहीं खान साहब, मेरी आंखों ने आज तक मेरे को धोखा नहीं दिया। मैं आपसे फिर कहता हूं कि पहले इसे काबू करवाओ, इसके बाद मैंने जो कुछ कहा इसकी वजाहत भी कर दूंगा। अगर मेरी बात गलत निकले तो आप जो जी चाहे मुझे सजा देना, मैं भुगतने को तैयार हूं, सादिक ने पुरअज़्म लहजे में कहा। मैंने कमालुद्दीन की आंखों में तफक्कुर तरद्दुद के आसार नुमाया होते देखे। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। मैंने भी जवाबन उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वो चंद लम्हों तक मेरे अंदरूनी एहसासात का अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा। तो क्या कहता है जवान, सुना तूने ये सादिक खान क्या कह रहा है? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सादिक बोल पड़ा। आप इससे बाद में सवाल और जवाब कर लेना खान साहब, पहले इसका कोई पक्का इंतजाम कर दो। बड़ा खतरनाक शख्स है, ये अगर जरा सा भी मौका मिला तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तूने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है सादिक? कमालुद्दीन ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा।